Very good morning to you all students. Today I am again with you with our fourth chapter, The Treasure Within. The treasure within means inner glow of a man, inner beauty of a man, inner strength of a man. We all have a strength, we all have power, we all have beauty inside us. हमारे अंदर एक ताकत होती है, हमारे अंदर एक खजाना होता है और हमें उस खजाने को जो है पर्पसफुली यूज़ करना होता है. So this chapter is a interview which was taken by Miss Bela Raja, who is an editor of the newsletter Sparsh, and she took the interview of Mr. Hafiz Contractor, who is a leading architect of India. And in this is a moral giving story. Through this story, we will come to know about the early life of Mr. Hafiz Contractor, how he spent his time during school time. He was not a good student. He used to do copy in exams for getting pass marks. And he never liked mathematics because it gave him shiver. But Hafiz Contractor was interested in drawing subject. He used to make many paintings and many other shapes. So he was very interested in it. But he never liked studies. He wasted all his time in doing pranks of other students, making pranks of other students. And a turning point came in his life when he was in 12th standard, when his principal called him in his office and said a few words to him. And those words changed his life completely. And he worked very hard throughout the year and got above 50% marks in 12th standard. And this story tells us about the situation which comes in every person's life. Every child has a different interest area. Some children like mathematics, some children like English, but a child should not be forced to do the study which he or she doesn't like. So I'm going to start this chapter. Every child is a potential achiever and is different from other children in his or her style of learning and area of interest. हर चाइल्ड के अंदर एक अलग योग्यता होती है. पोटेंशियल अचीवर अलग चीज़ों अपनी योग्यता से जो है अलग फील्ड में जो है वो अचीवमेंट्स प्राप्त कर सकता है. एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हर और हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट. और वो जो है उसके एरिया में, उसके जो सब्जेक्ट में जो बच्चे काम कर रहे हैं, उसके साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे उसका स्टाइल, उसका लर्निंग स्टाइल, उसका रीडिंग स्टाइल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है. रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज. It is based on a conversation between Miss Bela Raja, editor of Sparsh, a newsletter from the Resource Center, the Valley School, Bangalore, and Mr. Hafiz Contractor, one of India's leading architects. So we are going to read the interview, that was a conversation between Miss Bela Raja and Mr. Hafiz Contractor, who is a leading architect of India, and she was the editor of Sparsh, a newsletter from the Resource Center, the Valley School, Bangalore. And here the interview starts. Hafiz Contractor was an unhappy schoolboy. He loved doing things but detested mechanical learning. Mathematics gave him the shivers. What his principal once said to him influenced him deeply. There are 3 points given which tell the outline of the whole part. Here Hafiz Contractor was an unhappy schoolboy. उसको स्कूल में पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसको जो है he loved doing things but detested mechanical learning. Mathematics gave him the shivers. उसको जो है डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो कर भी सकता था, लेकिन जो है मैथमेटिक्स जो है उसको कपा देता था, वो उसको कभी भी पसंद नहीं करता था, वो कैलकुलेशन से बहुत ज़्यादा बचता था. और एक बार जो उसके प्रिंसिपल ने जो कुछ भी कहा वो उसको जो है बड़ी डीपली इन्फ्लुएंस कर गया, उसको प्रभावित कर गया.
So here HC means Hafiz contractor and BR means Bela Raja. There are two characters in this chapter, Hafiz contractor and Bela Raja. So now Hafiz contractor speaks. I used to have this terrible nightmare. मेरे को जो है अक्सर ये भयंकर सपना आता था. Only now, over the last 4 or 5 years, अभी तक बस 4-5 साल पहले तक, इट सीम्स टू हैव डिसअपियर, और अब ये जो है थोड़ा सा डिसअपियर जैसे कहीं पर खो गया है, ऐसा लगता है. 4-5 साल पहले तक मुझे भयंकर जो है एक सपना आता था. बेला राजा, व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड व्हाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ? She says to Hafiz contractor that about which nightmare, which dream, which terrible dream are you talking, and why are you saying that it has disappeared now? किस सपने की बात कर रहे हैं आप, और अब ये क्यों कह रहे हैं कि ये सपना जो है अब डिसअपियर हो गया है? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, आई यूज्ड टू गेट continuous nightmares about appearing for a maths examination where I didn't know anything. Now Mr. Hafiz contractor says that I used to get continuous nightmare. About what? He have nightmares. He had nightmares about the appearing in maths examination because maths always gave him shivers. maths जो है उसको हमेशा कपकपा देता था, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और उसको हमेशा जो है भयंकर सपने किसके बारे में आते थे? मैथमेटिक्स के बारे में, कि उसका जो है एग्ज़ाम हो रहा है वेयर आई डिडेंट नो एनीथिंग, और जहाँ उसको कुछ भी नहीं आता है. नाउ द साइक मस्ट हैव गोटन ओवर इट. आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स. और अब जो है ये सपना डिसअपियर क्यों हो गया है? क्योंकि जो है इसके ऊपर अब मन ने विजय पा ली है. माइंड जो है मेंटली प्रिपेयर्ड हो गया है, वो उसको पता है कि अब एजुकेशन का उसके लिए कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि अब उसको पढ़ना नहीं है, और उसके पास अभी जो है ऐसे सपने देखने का भी टाइम नहीं बचा है. सो इन दिस कन्वर्सेशन व्हाट वी केम टू नो about Hafiz contractor, that Hafiz contractor never liked mathematics. It gave him shivers and he always had a nightmare about appearing in math examination where he didn't know anything. And now he has forgotten all over this because he don't have time to take such type of nightmares. He don't have time to think about mathematics. He don't have time to go in educational area. So now Bela Raja says, tell us something about your earliest memories in school. She asked him about his earliest memories in school, कि आपकी जो स्कूल की मेमोरीज उनके बारे में हमें बताइए. Now Hafiz contractor says, in the first and second year I was a good student. फर्स्ट और सेकेंड क्लास में मैं एक बहुत अच्छा बच्चा था. आफ्टर reached the third standard I simply lost interest and never studied. And when I reached in third standard I lost interest from the studies and never tried to study. यानी कि वो फर्स्ट और सेकंड क्लास में था तब तक उसका इंटरेस्ट अच्छा था पढ़ाई में, लेकिन जैसे ही वो थर्ड क्लास में पहुंचता है, प्रमोट होता है, उसका जो है इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और उसने कभी भी जो है पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया उसके बाद. नाउ मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर सेज दैट आई यूज्ड टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स. आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स. ही सेज दैट he was interested in games, running around, playing pranks and jokes on others. दूसरों का मजाक बनाने में बड़ा उसको मज़ा आता था. I would copy in class during exam times. He would cheat in class during exam times of other students to get passing marks. वो जो है क्या करता था, उसका गेम्स में बड़ा इंटरेस्ट था, दौड़ने भागने में बड़ा मज़ा आता था, दूसरों का मजाक बनाने में बड़ा मज़ा आता था, बच्चों के साथ प्रैंक्स करता था, और वो जो है एग्ज़ाम टाइम में कॉपी करके नकल करके जो है पास हुआ करता था. आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी इट एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट
had been taught to me in class. Now what he says, I would try to get hold of the examination paper. मैं जो है क्या कोशिश क्या करता था कि मुझे कहीं से जो है एग्जामिनेशन पेपर पहले ही मिल जाए. that had been prepared and study it, और जो है उसको प्रिपेयर किया करता था मैं और उसको पढ़ता था उसके बारे में. एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास, क्योंकि मुझे जो है चीज़ें याद नहीं रहती थी जो मुझे क्लास में पढ़ाई जाती थी. सो मैं सोचता था कि मुझे पहले ही जो है क्वेश्चन पेपर मिल जाए और उसमें से मैं जो है अपना जो पासिंग मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है अपना काम कर सकूं. However, later one sentence spoken to me by my principal changed my life. Now he says that once his principal spoke some words to him that changed his life totally. एक बार उसके प्रिंसिपल के द्वारा जो कहे हुए शब्द थे उसकी वजह से जो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई थी. His principal called him in his office and said, when I approached my 11th standard, the principal called me and said, look here son, I have been seeing you from day one. When he was in 11th standard, his principal called him and said him, son, listen to me, I have been seeing you from day one. मैं तुम्हें जो है पहले दिन से देखता हुआ आ रहा हूँ, जब से तुमने स्कूल में एडमिशन लिया है. You are a good student, you are a great student, but you never studied, but you never try to study. तुमने कभी जो है पढ़ने की कोशिश ही नहीं की. You could read, you could study, but you never tried. I have taken care of you till today. मैंने आज तक तुम्हारी संभाल की है, तुम्हें संभाल के रखा है. Now I can no longer take care of you, so you do it yourself. Now the principal says to him that he couldn't take care of him, so he had to do it himself. ये उसको अपने आप ही करना था. अब वो जो है उसकी स्टडीज़ में कोई हेल्प नहीं कर सकता और उसको जो है फेल होने से नहीं बचा सकता. So he had to do his work himself. He talked to me for 5 minutes. Principal talked to him for 5 minutes. You don't have your father, your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees all these years, but you have only played games. Now he shows him the mirror of reality. वो उसको जो है सच्चाई का शीशा दिखाता, आईना दिखाता है. He tells him that your father has gone. Your father, you don't have your father, तुम्हारे पिताजी नहीं हैं. बट योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड, लेकिन तुम्हारी माँ ने जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है तुम्हें पालने पोसने के लिए. ब्रिंग यू अप मीन्स तुम्हारा पालन पोषण करने के लिए. एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दीज ईयर्स, और जो है इन सालों में जो है तुम्हारी पूरी फीस जो है उसने पे की है. लेकिन तुमने क्या किया है? बट यू हैव वेस्टेड योर टाइम इन प्लेइंग गेम्स. तुमने अपना सारा जो टाइम है वो गेम खेलने में वेस्ट कर दिया है. नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी. लेकिन अब जो है तुम्हें इस स्थिति से उठना चाहिए और पढ़ना चाहिए. आई यूज टू बी वेरी गुड स्पोर्ट्समैन. नाउ मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर टेल्स अबाउट हिमसेल्फ दैट ही यूज्ड टू बी अ गुड स्पोर्ट्समैन, अ गुड प्लेयर. ही हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स. वो जो है कई सालों तक जो है सीनियर चैम्पियन रह चुका है. एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन. मैं जो क्रिकेट टीम का भी कैप्टन था. आई यूज टू प्ले एवरी गेम. ही यूज टू प्ले एवरी गेम. बट दैट ईयर आई डिडंट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड. बट when his principal gave him a stroke, after that he didn't step out onto the field. जब से उसके प्रिंसिपल ने उसको ये बातें कही थी उसके बाद जो है उसने फील्ड में जा कर के नहीं देखा, एक कदम भी जो है ग्राउंड की तरफ नहीं बढ़ाया, क्योंकि ये जो चीज़ें थी, ये जो बातें थी, वो उसको डीपली जो है इन्फ्लुएंस कर देती हैं. आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी. मैं क्या करता था उसके बाद?
पूजा करने के लिए जाता था और उसके बाद जो काम था मेरा खाने का और पढ़ने का होता था। मैंने बिल्कुल जो है खेलना छोड़ दिया था। आई नॉर्मली यूज़ टू कॉपी एंड पास। मैं जो क्या करता था नॉर्मली क्लासेज में इससे पहले नकल करता था और पास हो जाता था। बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC आई कुड नॉट डू दैट। लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि एक बार में जो है कॉम्पिटिटिव हेयर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ SSC, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एंड सीनियर सेकेंडरी क्लास, 12th क्लास में जब मैं होऊंगा तो मैं कॉपी नहीं कर पाऊँगा। देयर आई वुड डू माई सेल्फ, वहाँ पर मैं जो है अपने आप करूँगा जो भी मुझे करना होगा। अब तक जो है मैं स्कूल में कॉपी कर लेता था, लेकिन जो है इस एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में जो है मैं अपना काम अपने आप ही कर सकता हूँ। नोबडी कुड हेल्प मी दैट टाइम। When I got a second class 50% in my SSC, my principal said, जब मैंने अपनी 12th क्लास में सीनियर सेकेंडरी क्लास में जो है 50% मार्क्स प्राप्त किए, मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे कहा, सन कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गोट अ डिस्टिंक्शन। अपने आप को ऐसा समझो कि तुमने जो है एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे जो है मार्क्स जो है एक रिकॉर्ड बना दिया है, एक अच्छे मार्क्स की जो है परसेंटेज तुमने ली है। दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज and this was all about his school days. Whatever he could memorize, that he told to Bela Raja about his school days. I did lots of other things. मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें की। See, as far as my things are concerned, I can't remember. I forgot things very easily. और जैसे जैसे मेरी चीज़ें जो है वो जैसे जैसे जो है मेरी यादें धुंधली हो जाती हैं, मेरे काम कंप्लीट होते चले जाते हैं, मैं उनको जो है भूलता चला जाता हूँ। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली, क्योंकि मैं जो है बातें वैसे भी जल्दी भूलता हूँ। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ। और उन बातों को जो है याद करने के लिए, पुरानी मेमोरीज़ को जो है रिकॉल करने के लिए, अनकॉन्शियस माइंड में गई हुई चीज़ों को जो है कॉन्शियस माइंड में लेके आने के लिए मैं क्या करता हूँ, आई हैव टू सी थिंग्स एज फोटोग्राफ। मुझे जो है फ़ोटोज़ देखने पड़ते हैं, तब मुझे जा कर के जो है पिछले इंसिडेंट याद आते हैं। आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। और वो क्या कहता है कि आई कैन रिमेंबर द मैटर एज ए फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड। मुझे अपने दिमाग से याद नहीं आती चीज़ें, लेकिन कोई फ़ोटोग्राफ मेरे सामने आ जाता है तो मैं उस चीज़ के बारे में, उससे जुड़ी कोई इंसिडेंट है उसके बारे में जो है याद रख कर पाता हूँ। और दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। और ये देखो मैं किस तरह से जो है काम करता हूँ। व्हेन यू वर इन स्कूल, मिस बेला राजा आस्क्ड, when you were in school and you were doing badly, did the teachers pull you up and how did you feel? जब कभी आप स्कूल में थे तो आप बहुत जो है काम अच्छा नहीं करते थे, हर सब्जेक्ट में जो है आप कमज़ोर थे। डिड द टीचर्स पुल यू अप? क्या टीचर्स जो है आपको डांटते थे, आपको स्टिक लगाते थे? एंड हाउ डिड यू फील? और आपको कैसा महसूस होता था? हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, आई नेवर फेल्ट एनी थिंग ऑन बींग पुल्ड अप। मुझे जो है ऐसा, जब भी टीचर्स ने मुझे जो है पीटा या मेरी पिटाई की मुझे डांटा, मुझे कभी भी जो है कुछ महसूस नहीं हुआ। आई यूज़ टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग। मैं जो है खेलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ करता था। आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक। और जो है मुझे क्या मिलता था, हर वीक जो है डंडे खाने को मिलते थे। नाउ बेला राजा आस्क, when you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? Now Bela Raja asked him that when you knew, जब तुम जानते थे कि तुमने जो है टीचर का काम नहीं किया है और उसको गुस्सा दिलवा दिया है, that you had incurred the wrath of your teacher, गुस्से को जो है तुमने बढ़ावा दे दिया है, by not doing homework, बाय बिहेविंग बैडली, गलत तरीके से व्यवहार करके या फिर उनका स्कूल का काम कंप्लीट नहीं करके, और तुम्हें ये भी पता होता था कि अब तुम्हें मार भी पड़ेगी, फिर तुम्हारे माइंड की जो है स्टेट कैसी होती थी, तुम्हारी स्थिति जो है मानसिक स्थिति कैसी हो जाती थी? हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, स्टेट ऑफ माइंड, मानसिक स्थिति, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू। वो
जो है हाथ ऊपर करवाते और डंडे मारते थे बस। इट वुड हर्ट बैडली, ये जो है बहुत बुरा दर्द देता था। एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, और फिर मैं जो इसके बारे में भूल जाता था थोड़ी देर बाद, बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मुझे जो है खेलने जाना होता था और यही मुझे अच्छा लगता था। नाउ बेला राजा, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन्ड, क्या कभी भी आप जो है इनसिक्योर और जो अपने आप को घबराया हुआ महसूस नहीं किया आपने? हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, मैं सिर्फ जो है खेलने में इंटरेस्टेड रहता था और उसके अलावा कुछ नहीं। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फ़नी प्रैंक्स, मुझे जो है प्रैंक्स करना बहुत ज़्यादा पसंद था। वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी, एक दिन मैं जो है पढ़ना नहीं चाहता था, सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन, so I diverted the mind of my class students. For one whole hour we played चोर पुलिस, एक घंटे के लिए जो है हम चोर पुलिस खेले क्लास में। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इनटू टाउन टू सी अ मूवी, हर सैटरडे हमें अलाउड किया जाता था टाउन में जा कर के जो है एक मूवी देखने के लिए। सो व्हाट आई वुड डू वॉज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40-50 स्टूडेंट्स, और मैं क्या करता था उस दिन, मुझे यही काम करना होता था कि हम जो है कोई लंच नहीं लेकर के आते थे और 40-50 स्टूडेंट्स जो है पैसे इकट्ठे कर लेते थे एंड रन एंड बाय द टिकट्स, और जो है शहर में जा कर के जो है क्या खरीदते थे, टिकट खरीद के लाते थे। ऑन माई वे बैक आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, और रास्ते में जो है बचे हुए पैसों से मैं जो है अपनी संतुष्टि का पूरा खाना खाता था। आई यूज़ टू बी द लीडर ऑफ अ गैंग, मैं जो है गैंग लीडर था, मेरा एक पूरा ग्रुप था स्टूडेंट्स का। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटजीज़, हमारी जो है ऑफन जो है गैंग फाइट्स होती थी, एक दूसरी गैंग्स के साथ जो है हमारी लड़ाइयाँ होती थी और हमारी प्लान स्ट्रेटजीज़ रहती थी, हम पूरी प्लानिंग के साथ जो है अपनी फ़ाइट वगैरह करते थे, पूरी योजना बना करके, पूरी युक्तियाँ बना करके। These things used to interest me more than any academics, और ये चीज़ें जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती थी एकेडमिक्स की बजाय, मुझे जो है पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी, सिर्फ जो है गैंग फाइट्स, गुंडागर्दी करना और जो है मिसबिहेव करना, दूसरे बच्चों का मजाक उड़ाना, खेलना कूदना, बस मुझे यही पसंद था। बट आई नेवर लाइक्ड एकेडमिक्स, और पर मुझे जो है कभी भी एकेडमिक्स पसंद नहीं था। Now Mr. Hafiz contractor says, students used to book my textbooks for the following year, और स्टूडेंट्स क्या करते थे, मेरी अगले साल के लिए जो है बुक्स को पहले ही बुक कर लेते थे, बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि मेरी बुक्स जो है हमेशा नई रहती थी। आई प्रोबेबली ओपन दैम वन डे बिफोर एग्ज़ाम्स, और शायद ही मैं जो है कभी उन्हें एग्ज़ाम से पहले दिन खोलता था, अदरवाइज़ जो है पूरा साल वो बंद रहती थी और बिल्कुल नई रहती थी। सो स्टूडेंट्स जो है जो अगली क्लासेस में प्रमोट होके मेरी क्लास में आने वाले थे, वो पहले ही जो है मेरी बुक्स को बुक कर लेते थे। सो इन दिस chapter up to now we have read about the first part of this chapter, and through their conversation what we came to know about his school days, how Hafiz contractor behaved in school, and how what was that he was interested in, ऐसा क्या था जिसमें वो इंटरेस्टेड रहता था, that he used to play games, he used to be a leader of his gang, and he was a captain of his cricket team also, and he never studied, he never liked studies, he used to do copy during exams of another students. And when that a turning point came in his life, when his principal called him in 11th class and gave him a emotional speech. What was about that? That was about his father and his mother. He principal said him about that he don't have father and his mother works whole day very hardly to bring him up and to pay all his fees, and now he should do some work for his mother also. He should do studies to pass in the 12th class, and that influenced him deeply. These talks influenced him deeply and he started studying.
and in 12th class he got more than 50% marks, and his teacher also praised him very much. So now he tells about that he never got feared with the furious nature and anger of his teachers. And he tells that in every Saturday he was allowed to go, they were allowed to go in town to see a movie, and he would have to do collection of the money from 40 to 50 students, and he used to bring tickets from the town, and on the way he would eat his arts content. So in this chapter, in this part, we came to know about his school life, and in the next part we will read about his occupation, how he became a architect, leading architect of India. Being a weak student, how could be it possible for him to be a successful person? इतना कमज़ोर स्टूडेंट होने के बावजूद जो स्टडीज़ में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था, वो एक अच्छा जो है बच्चा, एक अच्छा जो है सक्सेसफुल आर्किटेक्ट कैसे बन सकता है. At first I am going to read our three main points of this part. He stumbled on architecture because he knew little French and less German. Stumbled on means he came by chance in the field of architecture. वो जो है अचानक से जो है आर्किटेक्चर के फील्ड में आ गया था, क्योंकि उसको थोड़ी बहुत जो है फ्रेंच आती थी और कम थोड़ी सी जो है जर्मन भी आती थी. बिकॉज ही न्यू लिटिल फ्रेंच एंड लेस जर्मन, उसको जो है बहुत कम फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेजेस आती थी. ही वॉज ऑफ बीट इवन इन द प्रैंक्स दैट ही प्लेड ऑन अदर्स, और वो जो है अनयूजुअल था, अनकन्वेंशनल था इन द प्रैंक्स, जो कि वो ऑफन जो है प्राय जो दूसरों पर करता था प्रैंक्स. When he found his calling there was no looking back, और जब उसके लिए जो है ये शुरुआत हो जाती है, जब उसकी लाइफ में जो है आर्किटेक्ट बनने की जो उसकी शुरुआत होती है, तो उसने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा. अब उसको जो है प्रैंक्स करना और दूसरों के ऊपर मजाक बनाना, ये सब चीज़ें जो ऑफबीट हो गई थी. अब वो जो आमतौर पर ऐसा नहीं करता था, स्कूल टाइम में ऐसा करता था. अब उसको जो है फ्रेंच और जर्मन भी बहुत कम आती थी, लेकिन अचानक से फिर भी वो जो है आर्किटेक्ट के फील्ड में चला जाता है. तो ये तीनों पॉइंट्स हम हमारे इस पैराग्राफ में, हमारे इस पार्ट में जो है क्लियर करने जा रहे हैं. बेला राजा अब जो है मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के सामने क्वेश्चन रखती है, हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर. नाउ शी आस्क हिम दैट हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, आप फिर जो है आर्किटेक्ट फील्ड में कैसे आए. मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर नाउ रिप्लाइज, इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नोबडी हु हैड गॉट बिलो 80 to 85% वॉज अलाउड टू एंटर. आर्किटेक्चर कॉलेज में जो है जिसके 80 से 85% के नीचे जो है मार्क्स आते थे, उनको अलाउड ही नहीं था. और उसके तो सिर्फ जो है 12th में कितने परसेंट मार्क्स थे, 50% मार्क्स थे. आई वॉन्टेड टू जॉइन द आर्मी, मैं तो जो है आर्मी ज्वाइन करना चाहता था. आई गोट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप, और मेरा तो जो है वहाँ पर एडमिशन, इट मीन्स कि मेरी तो जो है वहाँ पर नियुक्ति भी हो गई थी, लेकिन मेरी आंट ने जो है मेरा जो एडमिशन लेटर था, अपॉइंटमेंट लेटर था, उसको फाड़ दिया था. देन आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू जॉइन द पुलिस फोर्स. फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ. माई मदर सेड डोंट जॉइन द पुलिस फोर्स. नाउ हिज मदर सेज डोंट जॉइन द पुलिस फोर्स, पुलिस फोर्स को ज्वाइन मत करो, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन, सिर्फ अपना ग्रेजुएशन करो. सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, और इसलिए मैं जो है कहाँ गया, बॉम्बे के जय हिंद कॉलेज में चला गया ग्रेजुएशन के लिए. देर आई वॉज टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन, दो ही आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years. आई डिडेंट नो 7 words ऑफ फ्रेंच, सो आई टुक जर्मन. और वहाँ पर मेरे सामने दो ऑप्शन रखे गए, एक या तो मुझे जो है कॉलेज में फ्रेंच लैंग्वेज को लेना था या फिर जर्मन लैंग्वेज को. लेकिन मैंने 7 साल तक जो है फ्रेंच पहले ही पढ़ी हुई थी, लेकिन मुझे 7 वर्ड भी जो है फ्रेंच लैंग्वेज के नहीं आते थे. 7 साल पढ़ने के बावजूद भी जो है उसको
फ्रेंच के 7 वर्ड भी नहीं आते थे, इसलिए जो उसने फ्रेंच को चूज़ नहीं किया कि 7 साल पढ़ने के बाद 7 वर्ड नहीं आते तो अब भी नहीं आएंगे. सो ही डिसाइडेड टू टेक जर्मन लैंग्वेज. देन माई जर्मन टीचर डाइड. और जैसे ही मैंने जर्मन लैंग्वेज ली, मेरा जर्मन पढ़ाने वाला जो टीचर था, जर्मन लैंग्वेज का जो टीचर था, वो मर गया. द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच. कॉलेज के बच्चों ने मुझसे कहा कि या तो मुझे जो है कॉलेज ही बदल लेना चाहिए या फिर मुझे जो है फ्रेंच लैंग्वेज ले लेनी चाहिए. नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज. अब मुझे जो है दूसरे कॉलेज में कौन एडमिशन देगा. आई हैड गोट एडमिशन टू जय हिंद बाई इन्फ्लुएंस. और मुझे तो जय हिंद कॉलेज में भी जो है दूसरों की सपोर्ट से, दूसरों की अप्रोच से जो है एडमिशन मिला था. इन्फ्लुएंस मीन्स अप्रोच. सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच. फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं फ्रेंच लैंग्वेज ले लेता हूँ. एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन. और मैंने फिर से जो है फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ना शुरू कर दिया. आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न. मैंने इसको अपनी कज़न से पढ़ना सीखा. शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ. और वो भी जो है आर्किटेक्ट की पत्नी थी. आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच. मैं जो आर्किटेक्ट के ऑफिस में जो है फ्रेंच पढ़ने के लिए जाता था. Now Bela Raja asked one more question. Was it then you decided you wanted to do architecture? क्या ये वही टाइम था जब तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें जो आर्किटेक्चर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, आर्किटेक्चर के फील्ड में जाना है. हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर. एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाई चांस. वास्तव में ये जो है एकदम से हो गया. मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन ये एकदम से जो है अपने आप जो है बदल गया. इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस आई सो समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल. और आर्किटेक्ट में ऑफिस में जब मैं गया तो देखा कि कोई जो है ड्राइंग कर रहा था. किसकी? विंडो डिटेल्स की. खिड़की को किस तरह से जो है घर में लगाना चाहिए. विंडो डिटेल इज़ अ वेरी एडवांस्ड ड्राइंग. और विंडो की जो डिटेल्स होती हैं वो बहुत ही एडवांस्ड होती हैं. ड्राइंग जो है उनकी बहुत प्रॉपरली की जानी चाहिए. आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग. मैंने उसको जा करके बोल दिया कि तुम्हारी ड्राइंग जो है बिल्कुल गलत है. दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन. अगर तुम खिड़की को इस तरह से घर में लगाओगे तो तुम्हारी खिड़की जो है नहीं खुलेगी. ही देन हैड अ बैट विद मी एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडेड. और उसने मुझसे शर्त लगा ली कि ऐसा करने से जो है खिड़की खुलेगी. और लेकिन बाद में जो है वो गलत मिला और मेरी बात सही थी. हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग. उसकी ड्राइंग बिल्कुल गलत थी. माई कजन्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज्ड. और ये जान करके मेरे कज़न जो थी उसके हस्बैंड बड़े सरप्राइज हो जाते हैं कि मुझे ये सब कैसे पता है. ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स विच आई इमीडिएटली डिड. उन्होंने मुझसे जो है कुछ स्पेशल चीज़ें ड्रॉ करने के लिए बोला और मैंने फटाफट उनको कर दिया. ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस एंड आई डिज़ाइंड अ हाउस. उन्होंने मुझे एक हाउस डिज़ाइन करने के लिए बोला और मैंने हाउस को डिज़ाइन कर दिया. आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर. और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम सब कुछ छोड़ो, सिर्फ जो है आर्किटेक्चर ज्वाइन करो. वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज. हम जो है कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने के लिए गए. द प्रिंसिपल वॉन्ट मी आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम्स बट इफ़ यू डोंट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन. अब प्रिंसिपल मुझे वार्निंग देते हैं कि वो मुझे अलाउड कर देंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्ट करने के लिए, बट अगर मैं अच्छा नहीं करता हूँ तो वो मुझे जो है ये कॉलेज ज्वाइन नहीं करने देंगे. आई गोट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम. और मैंने उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में A+ ग्रेड लिया. एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज अ केक वॉक. और उसी दिन से जो है मेरे लिए एक स्मूथ राइडिंग शुरू हो गई थी और जिससे मैं जो है अपने लक्ष्य को, अपने डेस्टिनेशन को जो है अच्छे से अचीव कर सकता था. आई हैड नेवर मेड अ प्लान. मैंने कभी प्लानिंग नहीं की. बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप. लेकिन मुझे ये पता था कि ऊंचाई से देखने पर कोई चीज़ कैसी नज़र आएगी. आई हैड नेवर नोन व्हाट अ सेक्शन वॉज बट आई न्यू इफ़ यू कट अ प्लेन वट इट वुड लुक लाइक. मुझे कभी सेक्शंस का नहीं पता चला कि क्या होते हैं सेक्शंस, लेकिन मुझे इतना पता था कि आप किसी प्लान को कर रहे हैं, किसी चीज़ को कट करके देख रहे हैं तो वो कैसी नज़र आएगी. मैं इमेजिनेशन कर लेता था उन चीज़ों का कि अगर हम इस चीज़ को जो है यहाँ से
जो है ये शेप देंगे, काट देंगे यहाँ से, तो जो है कैसी नज़र आएगी। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट, उसके बाद तो जो मैं हर क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन प्राप्त करता गया। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम वट आई यूज टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल्स, और मेरा मानना ये है कि ये सारी समझ मेरे में कब आई, जब मैं जो स्कूल के टाइम में खेला करता था और ड्राइंग किया करता था। आई हैड अ फ्रेंड कोल्ड बहराम दिवेचा। We used to have competitions between us for designing forts, guns and ammunitions. मेरे एक दोस्त थे जिनका नाम बहराम दिवेचा था, और हम दोनों आपस में कॉम्पिटिशन्स किया करते थे। हम जो है किस चीज़ का कंपटीशन करते थे कि हम देखते हैं कि कौन अच्छा फोर्ट डिज़ाइन करता है, कौन अच्छी गन्स डिज़ाइन करता है, कौन अच्छे एम्यूनेशंस डिज़ाइन करता है। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट, और हम जो है दोनों अच्छे डिज़ाइंस करते थे, बहुत ही अच्छी कोशिश करते थे ताकि हम जो है हमारा जो डिज़ाइन है वो दूसरे से बिल्कुल अलग और बहुत ज़्यादा अच्छा दिखे। सो टुडे वी हैव डन आवर चैप्टर टिल अप टू हियर, एंड वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर फ्रॉम दिस पेज टुमारो। थैंक यू।